लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, हमने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की कुछ आउटलाइन से रिलेटेड डिस्कस किया था, हमने कुछ देखा था कि हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में मज़ीद कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और मज़ीद क्या कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं कह सकते हैं कि प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आईटी मौजूद है। और कुछ क्वेश्चंस हमने पूछे थे आपसे कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि यू डोंट नीड कंप्यूटर, यू डोंट नीड आईटी, यू डोंट नीड एनी आईटी गैजेट, सो सच लाइक दैट हमने डिस्कस किया था। In today's lecture we will be discussing about professionalism, that what actually professionalism is and how this professionalism come. So we will be covering what is professionalism, characteristics of professionalism, traits mean qualities of a professional, moral law and ethics, principles related to that professionalism, IEEE code of conduct or code of ethics, some scenarios to expect and contemplate with respect to the professionalism. So this is the outline I will try to cover within this lecture. This lecture is in detail, so most probably it will be divided into two parts. One will be covered in today's lecture and one will be covered in next lecture, if it's not completed during this time period. Although I will try my best to complete it, but if it is not completed, we will be going through the other part in next lecture, in next class. So, what actually professionalism is? Before this, I would like to give you a small introduction related to professionalism, that how it came in a single person, how it should be in your personality. When we talk about a professionalism, it means that something which belongs to your own self, something which you yourself need to carve, you yourself need to think about, related to your own interest, related to your own qualification, and related to your own experience with respect to the time period, with respect to your life. If we talk about a definition, although it's not a single one, कि हम कहें कि ये बस सिर्फ एक fixed definition है, that's not. It varies. But actually professionalism takes more than the knowledge. It's a way of thinking, living, rather than build-up of learning. Think, what do it take to be a doctor? It's not just to be going to medical school. It's what actually you are. These all things about goes towards the professionalism. What actually professionalism comes from? If a person who is selecting a profession means a field from where you are to be paid, from where you are getting the money, एक ऐसी फील्ड जो आप सेलेक्ट करते हैं जहां से आपकी अर्निंग आ रही होती है, जहां वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी हो रही होती है, जहां आपकी स्किल्स खुद ही कार्व हो रहे होते हैं, जहां आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन. You are selecting your profession according to your own choice. आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, आप जो लर्निंग कर चुके होते हैं, आप उसी के लिहाज से सोचते हैं और उसी फील्ड में जाते हैं. Sometimes you become so confused that in which field I have to be, or I'm here, I had selected this field by mistake.
सो जब इस तरह की थिंकिंग आने लगे, सो गेट रिड ऑफ दिस थिंकिंग। आप अपना प्रोफेशन बाय चॉइस सेलेक्ट करते हैं, यानी खुद आपका इंटरेस्ट है, खुद आप जा रहे हैं उस फील्ड में। इट मीन्स दैट यू कैन डू मोर देन योर ओन सेल्फ। आप उसमें सेल्फ थिंकिंग कर सकते हैं, खुद से क्रिएटिविटी ला सकते हैं उस फील्ड में, उस प्रोफेशन में। और अगर आपको बाय फोर्स उस प्रोफेशन में डाला जाए, देन दैट इज द पॉइंट वेयर योर सेल्फ activity, your self grooming a bit damaged because of that forcement कि आपको जबरदस्ती इस फील्ड में डाला गया है, आपको जबरदस्ती इस प्रोफेशन में डाला गया है। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, कुछ सेल्फ ग्रूमिंग लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी प्रोफेशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वहां पे वो अपना मैक्सिमम देते हैं। बट मोस्टली जो है बाय नेचर हर कोई उस फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। सो जहां से आपकी अर्निंग हो रही है, जहां आपकी ट्रेनिंग स्किल्स ग्रूम हो रही हैं, जहां इथिकल स्किल्स आपकी सेल्फ ग्रूम हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रोफेशन। एंड फ्रॉम दैट प्रोफेशन आपके पास आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशन से आप प्रोफेशनल हो गए। कैसे प्रोफेशनल हो गए? एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। उसी प्रोफेशन में जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी क्वालिफिकेशन में जब आप नई नई चीजें सीख रहे होते हैं, तो कुछ अरसे बाद यू फील दैट आई एम अ प्रोफेशनल वन। एक प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया और वहां पे आपने कुछ टाइम गुजारा, वहां से आपकी अर्निंग हुई, और उस टाइम पीरियड में, उस टाइम लाइन में आपने कुछ सीखा। आफ्टर सम पीरियड, आफ्टर 2 to 3 months, आप कह सकते हैं कि मेरा इस फील्ड में इतने अरसे का एक्सपीरियंस है, मेरा आईटी फील्ड में इतने अरसे का एक्सपीरियंस है, मेरा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, एसक्यूए में, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस में, सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग में मेरा इतना एक्सपीरियंस है। सो अ पर्सन which is newly in that field, which is new in that field, will not be that much prefer as compared to you, because you have already experienced in that particular field. Why they are giving you preference? Because you learn, you spend some time in that field. क्यों एक फील्ड में रहने वाले बंदे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर जिसने बिल्कुल ही उस फील्ड में टाइम ना गुजारा हो? इसीलिए कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप जान जाते हो उस फील्ड को, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप समझ जाते हो कि हाउ टू डील इन विद पर्टिकुलर टाइम, विद पर्टिकुलर फील्ड। ओके, सो हमने देखा, हमने ज्वाइन किया एक प्रोफेशन, देन वी बिकम अ प्रोफेशनल, एंड after that a professionalism came in our personality. Now what is professionalism actually is? We select a profession, we become a professional, and now we are talking about the professionalism. So professionalism is that attitude, that how we know this profession is good for us. If you can do maximum in that particular field, if you think maximum you can that profession is good for you, if you do maximum for them. जैसे हम कहते हैं कि मैं ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, you are confident about that thing. So when that confidence come in yourself, when you are sure about that particular field, then go for it, because that is the actual field you can do your maximum in which. So we were talking about the professionalism, how we can be related to our profession, the maximum points we save for that particular field, then only for you, just go. And professionalism mein, when you get some attitude related to your field, you start
construction of your own self, and way to speak. You learn how to speak with your colleagues, how to speak with your boss, how to speak with your customers, how to deal with your customers. When you start learning all these things, it means that professionalism is coming in your own personality. You are learning from your profession. You know something about your profession. अक्सर आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को कि कहीं से लगता ही नहीं कि ये इंजीनियर है, ये तो डॉक्टर लगता ही नहीं है। Why? क्यों ऐसा कहा जाता है? Because that particular person is not showing that particular personality. Personality is not बड़ी बेजारी से, बड़ी अनकंफर्टेबल गैर उधर आ रहे होते हैं, बस सिर्फ टाइम गुजार के, बस सिर्फ वहाँ जो भी पर्टिकुलर जॉब टाइमिंग होती है वो स्पेंड करके तनख्वाह लेके, बस दैट्स इट। जिस तरह कहा जाता है कि इसको तो तनख्वाह से ही मतलब है। सो इन दैट सिचुएशन इट मीन्स दैट यू आर नॉट रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो गो फॉर योर ओन फील्ड इन विच यू कैन डू, जो दिल से आप जो फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे आप दे सकते हैं, आप शौक से अपना काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हैं और दूसरे को ये इमेज दे सकते हैं कि हाँ, यहाँ मैं कर सकता हूँ, आई नो समथिंग अबाउट दिस फील्ड, आई कैन डू मोर देन दैट। तो गो फॉर दैट फील्ड। उस प्रोफेशनलिज्म को बाय हार्ट एक्सेप्ट कीजिए। स्टार्ट लर्निंग योर ओन सेल्फ, स्टार्ट लर्निंग योर प्रोफेशनल। That is called the professionalism. When attitude, a positive attitude came in your personality, वो गुरूर वाली चीज की बात नहीं हो रही, okay? Positive change comes in your personality. That is called professionalism. You start on construction. You learn how to speak. You learn how to deal with the people. The way you deal with your customers. Except than that, when you learn how to manage the problems, when you learn how to accomplish your responsibilities with respect to the particular time, and people start attracting your personality, attracting your words. होता है ना कि बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं आप लोग कि ये क्या हड़ूस बनता है, मैंने इससे एप्लीकेशन साइन नहीं करवानी, मैंने इनसे अपने इश्यूज डिस्कस नहीं करने, मैं क्यों जाऊं इस। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोफेशन में आए हैं तो इट मीन्स कि आप से जो भी रिलेटेड, आपसे लिंक्ड लोग हैं, आप उनसे इस तरह डील करें सो दे कैन इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, और फिर उसी तरह वो आपसे डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स, उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, कोई कस्टमर्स हैं आपके, तो वो आके आपसे डिस्कस करें प्रॉब्लम्स और आप मैनेजेबल वे में उन लोगों की हेल्प करें, उन लोगों के इश्यूज सॉल्व करें। व्हेन ऑल दीज थिंग्स कम्स इन योरसेल्फ, ये सारी चीजें जब आपकी पर्सनैलिटी में शामिल होना शुरू हो जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होना शुरू हो जाती है, देन यू कैन से दैट यू आर अ प्रोफेशनल वन। Then you can say that professionalism is coming in your own personality. यही बात यहाँ ये जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है कि think, what does it take to be a doctor? It's not just by going to medical school. यानी सिर्फ एक मेडिकल स्कूल आना जाना और बस डिग्री ले लेना कि मैं डॉक्टर हो गया, क्या इससे आप डॉक्टर हो गए? No, not only you have to groom your personality, but also you have to learn that how to be a professional doctor. एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के नाते आपको वो प्रोफेशनलिज्म रिलेटेड टू योर फील्ड, रिलेटेड टू डॉक्टर, रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड आपने अपने पर्सनालिटी में शामिल करना है। अगर आपको मरीजों से बात करना नहीं आती, अगर आपको फार्मेसी में डील करना नहीं आता, then how you can say that you are a doctor? एक पेशेंट को यही तो आपके वर्ड्स, बीइंग अ डॉक्टर, आपकी वर्डिंग्स, आपके सेंटेंस, आपके स्टेटमेंट्स, आपकी वॉइस, इवन आपकी वॉइस की पिच, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सेम एज इट इज अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं,
सो अक्सर एक आम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि सारी रात सॉफ्टवेयर बनाने में लगा दी, सारी रात आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड करने में लगा दी और सुबह लेट ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे आपका हुलिया ये है कि बाल बिखरे हुए हैं और बस एक इमेज के बड़ा ही काम वाला बंदा है, देखो इतना काम करता है, आपस अपनी लाइफ में खोया हुआ है। नो, दैट्स नॉट वर्कड। कहीं कहीं तो चलो आपको ये बगैर आपकी पर्सनैलिटी के जो है, क्योंकि उनको काम चाहिए होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पे करके आपसे काम लेंगे। दे डोंट वांट टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी। आप एक कोने में बैठे हुए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोने में आप टाइम लगा रहे हैं और बस बना के दे रहे हैं, या घर में बैठ के आप वो ग्रूम कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन बना के उनको दे रहे हैं, ले जाके दे रहे हैं, और बच्चे दे जस्ट नीड दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और दैट्स इट, दे विल पे यू एंड खत्म, चाहे जितना भी हो, और आप बड़े खुश हो गए कि हमने ले ली पेमेंट। सो सिर्फ ये पेमेंट, सिर्फ मनी और सिर्फ वर्किंग नहीं है। आपने अपनी लाइफ को, आपने अपनी पर्सनालिटी को, आपने अपने ओन सेल्फ को देखना है कि कैसे आप उस प्रोफेशन में अपनी लाइफ जी रहे हो। If you can't live your own life by your own way, then you are not a professional one. अपने ही तरीके से ग्रूम लाइफ गुजारना उस प्रोफेशन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। So that's something about the professionalism. इस स्लाइड में भी यही है, who you are. Why say that someone is a doctor and all these things? Don't just engineer. We also are engineers. ये सिर्फ देखिए यहाँ पे लिखा है engineers. We also are engineers. Engineer verb और engineers noun. So एक verb में और noun में, एक loves में और एक action word, एक simple word में और एक action word में, दोनों में difference है. Okay? Action speaks louder than words. So सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्सनालिटी है, उसको देख के क्या सोता हुआ बंदा है, क्या करना है, एक किस तरह की फीलिंग्स आए, नो। और एक पर्सनालिटी को देख के आप कहते हैं कि यार, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कह रही हूँ, जैसे नॉर्मल आप वर्डिंग यूज कर रहे होते हैं कि यार देखो इसको, ये भी तो है ना बंदा इंजीनियर, ये भी तो है सॉफ्टवेयर डिजाइनर, कितना लाइवली, कितना फुल ऑफ लाइफ ये लेके चल रहा है अपनी फील्ड को, ये अपनी इसकी पर्सनालिटी तो देखो यार, ये जब बोलते हैं तो कितनी नॉलेज है इनको, इनके ये जब डिजाइनिंग करते हैं तो कितने एक्सपर्ट्स हैं, एंड यार इस बंदे से काम करवाना ये टाइम पे देता है और कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं लेता। देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से वर्डिंग चेंज हो रही है आपके कस्टमर्स की, किस तरह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी फील्ड में। सो ये जब फीलिंग्स आना शुरू हो जाए कस्टमर्स में, ये जब फीलिंग्स आना शुरू हो जाए, रिप्लाई आना शुरू हो जाए, फीडबैक्स इस तरह के पॉजिटिव आना शुरू हो जाए, देन इट मींस दैट प्रोफेशनलिज्म जो है आपकी पर्सनैलिटी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है। आप जो है रियल अपनी फील्ड में जाना शुरू हो गए, कोई बेजारी वाला एस्पेक्ट नहीं है, कोई इस तरह का इशू नहीं है कि आप सिर्फ मनी के लिए कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज नाउ अ प्रोफेशन इज हु यू आर, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यही बात जो मैं अभी आपसे कह रही थी। सेम ऑन द इंजीनियर हु रिगार्ड देयर professional functions as a business transaction to be judged by the question, just what do I get out of it? मुझे तो बस पैसा बनाना है, कितने पैसे मुझे मिलेंगे, ये सॉफ्टवेयर अगर मैंने बना लिया, जल्दी बना लो, पैसा बस मिलना चाहिए। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी थिंकिंग एक प्रोफेशनल बंदे की नहीं होनी चाहिए। When you start thinking like this, there your downfall starts. एक तरफ आपकी ये थिंकिंग आ गई, दूसरी तरफ आप डाउन होना शुरू हो गए। So don't think like this, because these negative thinkings just go towards the negativity, and that negativity makes you top to bottom.
आप चाहे जितने टॉप पे हो, जब आपके अंदर गरूर आना शुरू हो जाएगा और जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करना शुरू करेंगे तो मेहनत आपसे नहीं होगी, आप मेहनत के बारे में सोचेंगे नहीं, एंड ऑब्वियसली आप फर्स्ट स्टेप से डाउन स्टेप की तरफ आ जाएंगे. What professions have a reputation for being self-centered and selfish? No, you have to take care about your team members and your client. Obviously, as we discussed, that you are not only to deal with the money, you are not only a person to deal with work, that only complete the task and take the money and just finish. No, you are not going to be a person like that. If you want to be a profession one, you want to be a professional one, and you want professionalism in your personality, the positive professionalism, then bring constructive change in your personality. Deal with the peoples the way you discovered them, the way they deserve. Okay? किसी की आउटलुक से उससे झड़क के बात नहीं करनी.